ریوٹ انتظامیہ لوارث لاشیں سنبھالنے سے قاصر، مناسب انتظام وجود میں نہ آ سکا۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں مارچری ڈیڈ ہاؤس کے مرتبے پر فائز، ایک فریزر میں 6 لاشیں رکھنے کی گنجائش موجود۔ انتظامیہ کی جانب سے لاشوں کو مفت محفوظ کرنے کی بھی سہولت متعارف کرائے گی۔ این جی اوز کا حکومت سے لوارث لاشوں کی شناخت کا نظام متعارف کرانے کا مطالبہ۔ چنیوٹ میں سرکاری سطح پر لوارث لاشیں سنبھالنے کا کوئی انتظام وجود میں نہ آ سکا۔ ضلع بھر میں ڈیڈ ہاؤس ہی فنکشنل نہیں ہے۔ مقامی این جی او صاحبان ضعیفہ کفن دفن کا انتظام کرنے لگے۔ این جی او کے نمائندے اعجاز فرزانہ لالی کا کہنا تھا کہ حادثات کے نتیجے میں ملنے والی لاشوں کا کفن دفن کیا جاتا ہے۔ پولیس کارروائی کے بعد ڈیڈ باڈیز کی تدفین کے انتظامات کیے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر نثار علی کا کہنا تھا کہ ضلع بھر سے رواں سال 30 سے 40 لاوارث لاشیں ملی۔ حکومت لاوارث لاشوں کی شناخت کا نظام متعارف کروائے۔ ڈسٹرکٹ چنیوٹ میں کوئی ڈیڈ ہاؤس نہیں ہے۔ پولیس والے لے آتے ہیں ڈیڈ باڈی اور یہاں پہ لا کے اپنی قانونی کارروائی کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم پولیس والوں کے ساتھ مل کے ان کا غسل کفن کر کے جنازہ کروا کر باقاعدہ ان کو احترام کے ساتھ قبرستان میں دفن کرتے ہیں۔ 6 مہینے کے اندر اندر ہم نے جو ہے وہ 170 کے قریب ہم نے دفنائی ہیں۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں لاشوں کو محفوظ کرنے کے لیے جدید نظام موجود ہے۔ ڈسٹرکٹ اسپتال میں ایک کمرے کا مارچری یونٹ فرائض انجام دینے لگا، جہاں لاشیں محفوظ رکھنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا حامل فریزر زیر استعمال ہے۔ مارچری یونٹ کے فریزر میں 6 لاشیں ایک ساتھ محفوظ کی جا سکتی ہیں۔ مارچری میں لاشیں مفت محفوظ کرنے کی سہولت دستیاب ہے۔ ٹوبہ ٹیکسنگ مارچری کو رواں سال 50 لاشیں موصول خانے میں موجود ہیں۔ تینوں لاشیں میڈیکل کی تعلیم کے لیے طلبہ استعمال کر رہے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور کم وولٹیج کے باعث فریزر خراب ہوئے۔ ایک تو ہے ہمارا انیٹمی ڈپارٹمنٹ، یہاں پہ بچے جو ہیں یہ ڈیڈ باڈیز کے اوپر وہ پڑھتے ہیں، جو ہیومن یا انسانی ساخت ہے اس کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ تو یہ ڈیڈ باڈیز عموماً ہوتی ہیں لاوارث ڈیڈ باڈیز، جو ڈکلیئر ہوتی ہیں کہ ان کو لینے کے لیے کوئی نہیں آیا، باوجود اس کے کہ پولیس نے پوری اپنی کارروائی کی اور اس کی کارروائی پولیس کی کارروائی کے بعد یہ ہمارے پاس آ جاتی ہیں۔ جھنگ کے مارچری سینٹر کی حالت بھی فیصل آباد جیسی پائی گئی۔ ضلع کے واحد مارچری کے 6 میں سے 4 فریزر خراب ہو چکے۔ گزشتہ 6 ماہ کے دوران 6 لاوارث لاشیں ہسپتال لائی گئیں، 2 لاشیں شناخت کے بعد ورثا کے حوالے کی گئیں، جبکہ 4 لاوارث لاشوں کو امانتاً سپرد خاک کیا گیا ہے۔ لاشوں کی تدفین کے انتظامات ضلع کونسل نے کیے۔ ریوٹ انتظامیہ لوارث لاشیں سنبھالنے سے قاصر، مناسب انتظام وجود میں نہ آ سکا۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں مارچری ڈیڈ ہاؤس کے مرتبے پر فائز، ایک فریزر میں 6 لاشیں رکھنے کی گنجائش موجود۔ انتظامیہ کی جانب سے لاشوں کو مفت محفوظ کرنے کی بھی سہولت متعارف کرائے گی۔ این جی اوز کا حکومت سے لوارث لاشوں کی شناخت کا نظام متعارف کرانے کا مطالبہ۔ چنیوٹ میں سرکاری سطح پر لوارث لاشیں سنبھالنے کا کوئی انتظام وجود میں نہ آ سکا۔ ضلع بھر میں ڈیڈ ہاؤس ہی فنکشنل نہیں ہے۔ مقامی این جی او صاحبان ضعیفہ کفن دفن کا انتظام کر کے نمائندے اعجاز فرزانہ لالی کا کہنا تھا کہ حادثات کے نتیجے میں ملنے والی لاشوں کا کفن دفن کیا جاتا ہے۔ پولیس کارروائی کے بعد ڈیڈ باڈیز کی تدفین کے انتظامات کیے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر نثار علی کا کہنا تھا کہ ضلع بھر سے رواں سال 30 سے 40 لاوارث لاشیں ملی۔ حکومت لاوارث لاشوں کی شناخت کا نظام متعارف کروائے۔ ڈسٹرکٹ چنیوٹ میں کوئی ڈیڈ ہاؤس نہیں ہے۔ پولیس والے لے آتے ہیں ڈیڈ باڈی اور یہاں پہ لا کے اپنی قانونی کارروائی کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم پولیس والوں کے ساتھ مل کے ان کا غسل کفن کر کے جنازہ کروا کر باقاعدہ ان کو احترام کے ساتھ قبرستان میں دفن کرتے ہیں۔ 6 مہینے کے اندر اندر ہم نے جو ہے وہ 170 کے قریب ہم نے دفنائی ہیں۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں لاشوں کو محفوظ کرنے کے لیے جدید نظام موجود ہے۔ ڈسٹرکٹ اسپتال میں ایک کمرے کا مارچری یونٹ فرائض انجام دینے لگا، جہاں لاشیں محفوظ رکھنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا حامل فریزر زیر استعمال ہے۔ مارچری یونٹ کے فریزر میں 6 لاشیں ایک ساتھ محفوظ کی جا سکتی ہیں۔ مارچری میں لاشیں مفت محفوظ کرنے کی سہولت دستیاب ہے۔ ٹوبہ ٹیکسنگ مارچری کو رواں سال 50 لاشیں موصول ہوئی۔ لاشوں میں سے 11 کی شناخت نہ ہو سکی، جن کی این جی اوز کی جانب سے امانتاً تدفین کی جا چکی ہے۔ سرکار قیمت بتا کر چینی دینا ہی بھول گئی۔ چینی کی قیمت 173 روپے کلو مقرر ہونے کے بعد قلت، شہر کی ضرورت کے مطابق سپلائی نہ پہنچائی جا سکی۔ بیشتر کریانہ سٹورز نے چینی رکھنا ہی چھوڑ دی۔ چینی فراہم کرنے والی دکانیں کلو کے 190 روپے بٹورنے لگیں۔ جنگ سرکار نے چینی کے نرخ تو مقرر کر دی ہے، مگر رسد یقینی بنانا بھول گئے۔ جنگ کے بڑے سٹورز کے علاوہ بیشتر کریانہ مرچنٹس پر چینی غائب ہے۔ جنگ میں گلی محلے کی دکانوں کو چینی دستیاب نہ رہی۔ چینی فراہم کرنے والی دکانوں پر چینی کا نرخ 190 روپے کے لگ بھگ ہیں۔ صارفین ناراض ہیں۔ مین جو شوگر ملیں ہیں جہاں سے چینی کی پیداوار ہو رہی ہے، وہاں سے عوام کو چینی سستے داموں لے کے دی جائے، جو سرکار نے ریٹ طے کیا ہوا ہے۔ دکاندار اپنی جگہ پہ مجبور ہے کیونکہ ان کو بھی بلیک میں چینی مل رہی ہے، وہ بھی بلیک میں مل رہی ہے۔ ایٹ دی اینڈ جو اینڈ یوزر ہے، جو عوام ہے، وہ پیس رہی ہے۔ میری مؤدبانہ ریکویسٹ ہے ڈی سی صاحب جو شوگر ملیں ہیں ان مافیاز کو کنٹرول کریں۔
ताजिर बिरादरी का कहना है कि इंतजामिया कंट्रोल रेट पर चीनी फराहम करे। कैमरामैन अरबाब अहमद के साथ रमजान मिर्जा, सिटी 41, झंग। बिजली और गैस महंगी, प्रोसेसिंग और फिनिशिंग लागत बढ़ गई। फैसलाबाद कपड़ा मार्केट में महंगाई की नई लहर आने को तैयार। नई सीजन का कपड़ा गुज़िश्ता साल की निस्बत 15% महंगा होने का खदशा। ताजिर कहते हैं हुकूमत बिजली और गैस सस्ती करे। फैसलाबाद में मौसम गर्मा के बाद अब आइंदा सीजन का कपड़ा तैयार होना शुरू हो गया। ताजर बरादरी ने महंगी बिजली की वजह से आने वाले सीजन के लिए कपड़े की कीमतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया है। नए सीजन के लिए कपड़े की पैदावारी लागत बढ़ने से कपड़े की कीमत में बढ़ने के इम्कानात जाहिर किए गए हैं। कपड़े का कारोबार करने वाले ताजरों का कहना है कि बिजली के नर्ख और गैस के रेट में इजाफे से कपड़ा महंगा हो रहा है। कपड़े की प्रोसेसिंग और फिनिशिंग के अमल के रेट्स भी बढ़ रहे हैं। आप देखें कि कपड़े की कीमतें जो हैं बेतहाशा इजाफा हो चुका है, और इस अब जो सीज़न आ रहा है मौसम सरमा का, उस हवाले से अब जो कपड़ा खरीदना है अवाम ने, तो मैं कहता हूँ उसको 10 से 15% जो है वो महंगा खरीदना पड़ेगा। सिटी क्लॉथ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी अब्बास हैदर शेख का कहना है कि प्रोसेसिंग और फिनिशिंग पर लागत में इजाफा हो रहा है। अब आइंदा सीजन का कपड़ा 10 से 15% तक मजीद महंगा हो सकता है। अवाम की कुव्वत खरीद बहुत मुतासिर हो चुकी है, तो इस हवाले से हम कहेंगे कि इन गैस बिजली की कीमतों में कमी होनी चाहिए, जिससे जो है कपड़े की कीमत कम हो, हमारी लागत कम आए और अवाम को हम ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटेट कर सकें। ताजरों की जानिब से अपील की जा रही है कि बिजली और गैस की कीमतों को कम किया जाए ताकि महंगाई की शरह में कमी आए और कारोबार का पहिया चल सके। कैमरामैन मोहम्मद मोइज के साथ फजील अहमद, सिटी 41, फैसलाबाद। महंगाई तवानाई के बाइस टेक्सटाइल का शोबा बुरी तरह मुतासिर। टेक्सटाइल यूनिट्स बंद होने लगे, बेरोजगारी के तूफान का खदशा मंडलाने लगा। फैसलाबाद के ताजर इंडस्ट्री की बका के लिए परेशान नजर आने लगे। परेशानी हाल ताजरों ने हुकूमत से रिलीफ मांग लिया। कहते हैं मार्केट में कारोबारी हालात बिगड़ रहे हैं, हुकूमत इंडस्ट्री की बका के लिए इकदाम करे। ताजरों का कहना है कि इंडस्ट्री इस वक्त तबाह हाली का शिकार है। टेक्सटाइल यूनिट्स बंद हो रहे हैं, जिससे बेरोजगारी बढ़ रही है। महंगी बिजली की वजह टेक्सटाइल का शोबा शदीद मुतासर हो रहा है। हुकूमत से अपील है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को रिलीफ दिया जाए ताकि इंडस्ट्री बहरान से बाहर आए और कारोबारी हालात बेहतर हो सकें। आपको बताते चले कि ताजरों का कहना है कि इंडस्ट्री इस वक्त तबाहाली का शिकार है। टेक्सटाइल यूनिट्स बंद हो रहे हैं, जिससे बेरोजगारी बढ़ रही है। महंगी बिजली की वजह टेक्सटाइल का शोबा शदीद मुतासिर हो रहा है। हुकूमत से अपील है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को रिलीफ दिया जाए ताकि इंडस्ट्री बहरान से बाहर आए और कारोबारी हालात बेहतर हो सकें। जायदादों के मालिकान के लिए अच्छी खबर। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की जानिब से जायदादों के मालिकान को सितंबर के इख्तिताम पर प्रॉपर्टी टैक्स अदायगी पर 5% रियायत दी जाएगी। पहली महमाही खत्म होने पर टैक्स रिलीफ भी खत्म कर दिया जाएगा। जायदादों के मालिकान के लिए अच्छी खबर। रवा माली साल के प्रॉपर्टी टैक्स अदायगी पर 5% रियायत। महकमा एक्साइज सितंबर के इख्तिताम तक प्रॉपर्टी टैक्स में रियायत देगा। पहली छमाही खत्म होने पर टैक्स रिलीफ भी खत्म कर दिया जाएगा। टैक्स रिलीफ यकमुश्त अदायगी करने वालों को मिलेगा। गुज़िश्ता बरसों के बाद जमात की अदायगी पर टैक्स रिलीफ नहीं मिलेगा। सेल्स टैक्स फ्रॉड या चोरी के इल्जामात पर गिरफ्तारियों के मामले पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए कमेटी कायम। कमेटी में एफपीआर अफसरान और बिजनेस कम्युनिटी के नुमाइंदे शामिल। फाइनेंस एक्ट 2025 में टैक्स डिफॉल्टर्स और सेल्स टैक्स फ्रॉड के इल्जामात पर गिरफ्तारी का इख्तियार तफ्तीशी अफसरान को दिया गया था। कारोबारी तबके की जानिब से गिरफ्तारियों के इख्तियारात खत्म करने का मुतालबा किया जा रहा है। कारोबारी तबके का मौक़िफ़ है कि एफपीआर अफसरान के इख्तियारात में बिला जवाज इजाफे में हरासमेंट में मजीद इजाफा होगा। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से डिवीजन भर में घरों और कमर्शियल जायदादों के सर्वे का फैसला। कंट्रैक्टर से डेटा इकट्ठा करवाया जाएगा, बाद में इस डेटे की तस्दीक भी करवाई जाएगी। पहले मरहले में जायदाद मालिकान का डेटा इकट्ठा किया जाएगा। कमर्शियल और हाउसिंग का डेटा इकट्ठा करके लोकल गवर्नमेंट के साथ शेयर किया जाएगा। हुकूमत पंजाब फीस ऐड करने के हवाले से फैसला करेगी। कंट्रैक्टर्स डेटा इकट्ठा करेंगे। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी डेटा तस्दीक के बाद लोकल गवर्नमेंट के साथ शेयर करेगी। फैसलाबाद में निकाहनामे में जालसाजी खत्म करने के लिए लोकल गवर्नमेंट का अहम इक़दाम। निकाहनामे को डिजिटल किया जाएगा। निकाहनामों में जालसाजी खत्म करने के लिए सर्टिफिकेट में QR कोड लगाया जाएगा। QR कोड की मदद से जालसाजी पर काबू पाया जा सकेगा। इस दौरान निकाह खानों की ट्रेनिंग करवाई जाएगी, जिसका मकसद ये होगा इस सर्टिफिकेट को फुल प्रूफ बनाया जाए और निकाह रजिस्टर्ड भी सिर्फ सरकारी ही इस्तेमाल किया जाए।
प्राइवेट निकाह रजिस्टर इस्तेमाल करने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। फेस्को एएमआर मीटर्स की सेटिंग के मसाइल का मामला। फेस्को ने तमाम सर्कल से मुतासरा एएमआर मीटर्स का रिकॉर्ड तलब कर लिया। एएमआर मीटर्स की सेटिंग के हवाले से रिकॉर्ड पीआईटीसी को फराहम कर दिया गया है। नेट मीटरिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली एएमआर मीटर्स की सेटिंग का रिकॉर्ड तलब किया गया है। एएमआर मीटर्स की सेटिंग के मसाइल के बाद रिकॉर्ड तलब किया गया है। 5 रोज में तमाम सर्कल्स को मुतासरा एएमआर मीटर्स का रिकॉर्ड देने का हुक्म जारी किया गया है। फेस्को हुकाम का कहना है कि एएमआर मीटर्स की सेटिंग से हवाले से इकदाम किए जा रहे हैं। आपको एक बार फिर से अपडेट करते चले कि फेस्को एएमआर मीटर्स की सेटिंग के मसाइल का मामला। फेस्को ने तमाम सर्कल से मुतासरा एएमआर मीटर्स का रिकॉर्ड तलब कर लिया। एएमआर मीटर्स की सेटिंग के हवाले से रिकॉर्ड पीआईटीसी को फराहम कर दिया गया है। नेट मीटरिंग के हवाले इस्तेमाल होने वाले एएमआर मीटर्स की सेटिंग का रिकॉर्ड तलब किया गया है। एएमआर मीटर्स की सेटिंग के हवाले के बाद रिकॉर्ड तलब किया गया है। 5 रोज में तमाम सर्कल्स को मुतासरा एएमआर मीटर्स का रिकॉर्ड देने का हुक्म जारी किया गया है। फेस्को हुकाम का कहना है कि एएमआर मीटर्स की सेटिंग के हवाले से इकदाम किए जा रहे हैं। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने कंज्यूमर कोर्ट में जेर समाअत केसेस 19 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस में तकसीम कर दिए। सीरियल नंबर 1 से 130 तक की समाअत एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस की अदालत में हुआ करेगी। हुकूमत पंजाब की जानिब से फैसलाबाद समेत पंजाब भर में वाक़या कंज्यूमर कोर्ट्स खत्म कर दी गई थी, जिसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने कंज्यूमर कोर्ट में जेर समाअत केस और नए दायर होने वाले केसेस के इख्तियार डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को सौंप दिए थे। अब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने कंज्यूमर कोर्ट में जेर समाअत केसेस मतहत 19 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस में तकसीम कर दिए हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस में 5 से 10 केसेस तकसीम किए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि हुकूमत पंजाब की जानिब से फैसलाबाद समेत पंजाब भर में वाक़या कंज्यूमर कोर्ट्स खत्म कर दी गई थी, जिसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने कंज्यूमर कोर्ट में जेर समाअत केसेस और नए दायर होने वाले केसेस के इख्तियारात डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को सौंप दिए थे। अब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस ने कंज्यूमर कोर्ट में जेर समाअत केसेस मतहत 19 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस में तकसीम कर दिए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस ने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस में 5 से 10 केसेस तकसीम किए। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। फैसलाबाद में मुल्क के ममारों के लिए तालीमी सहूलियात का फुकदान। 621 स्कूल्स के मैट्रिक पास तलबा के लिए सिर्फ 50 सरकारी कॉलेजेस मौजूद। निजी इदारों से महंगी तालीम का हुसूल बेशतर बच्चों के रोशन मुस्तकबिल की राह में रुकावट बनने लगा। डिवीजन भर में सालाना 40,000 से ज्यादा तलबा और तालिबात तालीम अधूरी छोड़ने पर मजबूर हैं। हुकूमत की जानिब से मैट्रिक तक मुफ्त तालीम, लेकिन मैट्रिक के बाद तलबा के लिए तालीमी सहूलियात का फुकदान है। हुकूमत पंजाब भर में मैट्रिक के बाद बच्चों को तालीमी मौके फराहम करने में नाकाम दिखाई देने लगी। फैसलाबाद में 621 स्कूल से मैट्रिक पास तलबा के लिए जिला भर में सिर्फ 50 सरकारी कॉलेजेस मौजूद है, जिसके बायस बेशतर बच्चों के लिए निजी कॉलेजेस में भारी फीसों के साथ तालीम जारी रखना मुश्किल बन गया है। सरकारी कॉलेज की महदूद तादाद के बायस हर साल डिवीजन भर से 40,000 से ज्यादा तलबा मैट्रिक के बाद तालीम छोड़ने पर मजबूर हैं। जिला फैसलाबाद से 63,000 रेगुलर, जबकि डिवीजन भर से 1,34,000 तलबा ने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया है। ताहम इसी मुनासबत से तलबा के लिए कॉलेजेस में सीटें मैसर नहीं। मैट्रिक पास तलबा को ज्यादा से ज्यादा तालीमी मौका फराहम करने के लिए हुकूमत को मजीद सरकारी कॉलेजेस बनाना होंगे। कैमरामैन कमर बूटा के साथ जहांगीर अशरफ, सिटी 41 फैसलाबाद। जंग में दरिया चुनाव के हिफाजती बंद और सरगोदा रोड के ज़राई रकबे सैलाबी पानी से शदीद मुतासिर। मसाइल में घिरी आबादियों में मामूलाती जिंदगी मफलूज होकर रह गए। तरीमू बैराज में पानी की सतह में कमी बावजूद ज़ेरे आब इलाकों में दबाव कम ना हो सका। सैलाबी पानी के सबब ज़ेरे आब आए इलाकों में मसाइल ने घर कर लिया। दरिया चनाब के हिफाजती बंद और सरगोदा रोड के ज़राई रकबे भी सैलाबी पानी से शदीद मुतासिर हुए। तिरमू बराज पर पानी की मिकदार कम होकर 59,000 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई। तिरमू बराज पर पानी में कमी आने के बावजूद झंग के इलाकों में दबाव कम न हो सका। सैलाब से मुतासरा इलाकों में जिंदगी मफलूज दिखाई देने लगी। तो बड़े तंग होने अब इस तरह सारे सेज सूझ गए। सामान पानी इस वक्त बहुत डूंगा खलोता है। खान पीने बड़ी प्रॉब्लम सानू है। भूख से मारना है। मियाँ काम करता था, वो भी बैठा मजदूरी करता था दिन पर रात। दरिया किनारे आबाद मकीनों के घर, डेरे और जानवरों के बाड़ों में भी पानी ने डेरा जमा लिया। मजीद सैलाबी रेले न आए तो मुतासरा इलाकों में जिंदगी मामूल पर आने के लिए 2 हफ्ते दरकार होंगे। कैमरामैन अरबाब अहमद के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग।
जायका का 3 रुकनी वफ्द मजीद नए प्रोजेक्ट्स की तलाश में फैसलाबाद पहुंच गया। जायका वफ्द ने नए प्रोजेक्ट्स के हवाले से एमडी वासा से अहम मुलाकात की। एमडी वासा सुहेल कादिर चीमा ने 3 नए प्रोजेक्ट्स के हवाले से तजावीज पेश की। जंग ब्रांच कैनाल पर 20 मिलियन गैलन डेली का सरफेस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की पोटेंशियल मौजूद। सुहेल कादिर चीमा का कहना था कि जाल खानवाना पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट प्रोजेक्ट में तोसी की तजवीज दी गई है। गोगीरा ब्रांच कैनाल पर 5 मिलियन गैलन डेली का प्रोजेक्ट भी तजावीज में शामिल। इन दोनों प्रोजेक्ट्स को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने के मंसूबे पर भी तबादला ख्याल किया गया। डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर इंजीनियरिंग साकिब रजा, डायरेक्टर पीएनडी मकबूल अहमद भी मौके पर मौजूद थे। आपको बताते चले कि झंग ब्रांच कैनाल पर 20 मिलियन गैलन डेली का सरफेस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की पोटेंशियल मौजूद है। सुहेल कादिर चीमा का कहना था कि झाल खानवाना पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट प्रोजेक्ट में तोसी की तजवीज दी गई है। गोगीरा ब्रांच कैनाल पर 5 मिलियन गैलन डेली का प्रोजेक्ट भी तजवीज में शामिल है। इन दोनों प्रोजेक्ट्स को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने के मंसूबे पर भी तबादला ख्याल किया गया। डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर इंजीनियरिंग साकिब रजा, डायरेक्टर पीएनडी मकबूल अहमद भी मौके पर मौजूद थे। फैसलाबाद में रीजनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्कीम की तकमील के लिए मंजूरी तलब कर ली गई। महकमा बहबूद आबादी ने तरमीम शुदा PC1 की मंजूरी तलब कर ली। आरटीआई की बिल्डिंग की तकमील के लिए 18 करोड़ के फंड्स मंजूरी की इस्तदा। महकमा बहबूद आबादी का कमिश्नर फैसलाबाद को मरासला। स्कीम की मंजूरी की इस्तदा। आरटीआई की बिल्डिंग पर महकमा बिल्डिंग्स की जानिब से काम जारी है। फैसलाबाद में रीजनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्कीम की तकमील के लिए मंजूरी तलब कर ली गई। महकमा महबूदाबाद ने तरमीम शुदा PC1 की मंजूरी तलब कर ली। आरटीआई की बिल्डिंग की तकमील के लिए 18 करोड़ के फंड्स मंजूरी की इस्तदा। महकमा महबूदाबादी का कमिश्नर फैसलाबाद को मुरासला। स्कीम की मंजूरी की इस्तदा कर दी। आरटीआई की बिल्डिंग पर महकमा बिल्डिंग्स की जानिब से काम जारी है। सूबे भर में दूसरा मरहले में BHUs की रिवैम्पिंग स्कीमों पर ब्रीफिंग। सूबाई वजीर तामीरात व मवासलात मलिक सुहेब अहमद की जेर सदारत इजलास। एडिशनल सेक्रेटरी अब्दुल्ला नैयर, एडिशनल सेक्रेटरी अमीरुल हसन शाह और दीगर की शिरकत। सूबाई वजीर के पहले मरहले के रिवैम्पिंग शुदा BHUs पर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के हवाले न करने का सख्त नोटिस। फैसलाबाद डिवीजन के अफसरान, बिल्डिंग्स को वार्निंग जारी। सूबाई वजीर के मुतलका अफसरान को BHUs प्राइमरी एंड सेकेंडरी को फौरी हैंड ओवर करने की हिदायत कर दी। तामीराती काम के मयार और रफ्तार पर ब्रीफिंग दी गई। सूबे के 8,467 मिलियन की लागत से 515 BHUs की रिवैम्पिंग की जा रही है। 30 सितंबर तक रिवैम्पिंग के अमल को मुकम्मल कर दिया जाएगा। सूबाई वजीर की तामीराती कामों में आला मटीरियल इस्तेमाल करने की हिदायत। BHUs रिवैम्पिंग स्कीमों के स्कोप ऑफ वर्क के मुताबिक सामान लगाने की हिदायत है। आपको एक बार फिर से बताते चले कि सूबाई वजीर की पहले मरहले की रिवैम्पिंग शुदा BHUs प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के हवाले न करने का सख्त नोटिस। फैसलाबाद डिवीजन के अफसरान, बिल्डिंग्स को वार्निंग जारी कर दी गई है। सूबाई वजीर के मुतल्लिका अफसरान को BHUs प्राइमरी एंड सेकेंडरी को फौरी हैंड ओवर करने की हिदायत कर दी गई। तामीराती काम के मयार और रफ्तार पर ब्रीफिंग दी गई। फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी का अनोखा कारनामा। FDA सिटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के मेंबरान से वसूल की जाने वाली फीसों में मुबैना खुर्द बुर्द की जाने लगी। FDA सिटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के पास रजिस्टर्ड ही नहीं मगर मेंबरान से रजिस्टर पर सर्विसेज का सेल्स टैक्स वसूल किया जा रहा है। शहरियों से वसूल किया जाने वाला टैक्स कौमी खजाने में जमा ही नहीं कराया जा रहा। PRA हुकाम के मुताबिक FDA स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स टैक्स नेट में रजिस्टर्ड ही नहीं है। आपको एक बार फिर से बताते चले कि FDA सिटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के पास रजिस्टर्ड ही नहीं है मगर मेंबरान से रजिस्ट्रेशन पर सर्विसेज का सेल्स टैक्स वसूल किया जा रहा है। शहरियों से वसूल किया जाने वाला टैक्स कौमी खजाने में जमा ही नहीं करवाया जा रहा। PRA हुकाम के मुताबिक FDA स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स टैक्स नेट में रजिस्टर्ड नहीं। कि फैसलाबाद को कोऑपरेटिव हाउसिंग हुकाम की अदम तवज्जो ऑडिट अमूर लटक गए। फैसलाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज के मतहत चलने वाली हाउसिंग सोसाइटीज की अराजी पर काबिजीन की मौजूदगी का इंकशाफ। रेलवे कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के प्लॉट से कब्जा न छुड़ाया जा सका। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी से कर्ज वसूली, रिकवरीज के अमूर सुस्त रवि का शिकार। गैर फाल डिफॉल्टर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ कार्रवाई न हो सकी। रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव की जानिब से डिवीजन भर से सोसाइटीज की माली अमूर समेत दीगर तफसीलात तलब की गई थीं। फैसलाबाद डिवीजन मसाइल का गढ़ बन गया। झालबुल के नीचे गंदे पानी से ताफून उठने लगा।
ग्रीन बेल्ट तबाह, मदनी पार्क में घास का नामो निशान तक खत्म होने लगा। अलफतेह फुटबॉल ग्राउंड हुकाम की तवज्जो का मुंतजर, चंडियोट लारी अड्डा में सहूलियात का फुकदान, इस्लाम नगर से महलिका फातिमा अली पार्क की टफ टाइल उखाड़ दी गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पीएचई फैसलाबाद ने शहर के ग्रीन बेल्ट से मुंह मोड़ लिया। पीपल्स कॉलोनी, डी ग्राउंड, बटाला कॉलोनी के अतराफ की ग्रीन बेल्ट दलदल में तब्दील, घास का नामो निशान तक न रहा। खूबसूरत ग्रीन बेल्ट खंदरात में तब्दील होने लगी। फैसलाबाद जबा रोड का ग्रीन बेल्ट तजावुजात से आजाद न कराया जा सका। ग्रीन बेल्ट पर जा बजा फर्नीचर तो कहीं कबाड़ के ढेर लगा दिए गए। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से ताहा ग्रीन बेल्ट क्लियर न कराया जा सका। बटाला कॉलोनी का मदनी पार्क बहाली का शिकार, घास का नामो निशान तक खत्म होने लगा। जा बजा गंदगी के ढेर मौजूद, ताफुनज़दा माहौल पैदा करने लगा। अरसा दराज गुजरने के बावजूद पार्क की हालत को बेहतर न किया जा सका। फैसलाबाद का अलफतेह फुटबॉल ग्राउंड हुकाम की तवज्जो का मुंतज़िर, ग्राउंड में घास मौजूद नहीं, हर तरफ मिट्टी और रेत। ग्राउंड की दरारों के बायस खिलाड़ियों की इंजरीज का खदशा पैदा हो गया। चनियोट लारी अड्डा में सहूलियात का फुकदान, वॉशरूम फाल, ना ही पीने के पानी का कोई इंतजाम, मुसाफिरों और ड्राइवर्स की मुश्किलात बढ़ गई। फैसलाबाद में पार्क की बदहाली बढ़ गई। इस्लाम नगर से मल्लिका फातिमा अली पार्क की टफ टाइल उखाड़ दी गई। पार्क में बेंच टूट फूट गए, घास नाम की नहीं, हर तरफ मिट्टी के ढेर। मकीन कहते हैं पार्क की हालत इतनी खराब कि बच्चे रुख नहीं करते। अब आपको बताएं कि मकबरे के 3 साल बाद भी अदम बाज़जाबी पर अदालत बरहम। सीपीओ फैसलाबाद बिलाल उमर लाहौर हाई कोर्ट पेश। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम ने केस पर समाअत की। सीपीओ ने अदालत को बताया दरखास्त गुजार की मां ने शादी कर ली है। चीफ जस्टिस ने कहा ये संजीदा केस है, देखें और मामलात तो नहीं है, मकबरे को बाजियाब और तफ्तीश मुकम्मल करें। अदालत ने सीपीओ को 20 अगस्त तक की मोहलत दे दी। दरखास्त गुजार इकरा ने जून 2022 में अदालत से रुजू किया था। इंचार्ज पुलिस खदमत मरकज मुनीब गिलानी की कार्रवाई। मुनीब गिलानी ने खदमत मरकज पर आने वाला इश्तिहारी और अदालती मफरूर गिरफ्तार कर लिया। नुमान और मोहम्मद अहमद जनरल सदीक करवाने के लिए खदमत मरकज आए। पड़ताल पर अहमद टेलीग्राफ एक्ट के मुकदमे में सिटी जड़ावाला पुलिस का इश्तिहारी निकला। नुमान शराब बरामदगी के थाना सरगोदा रोड के मुकदमे में अदालती मफरूर पाया गया। गिरफ्तार इश्तिहारी और अदालती मफरूर मुतल्लिका पुलिस के हवाले कर दिए गए। एसएचओ थाना सदर तांदलियावाला की कार्रवाई। पुलिस ने अगवा और तशद्दुद केस के इश्तिहारी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। इश्तिहारी मुलजिमान हसनैन और तजम्मुल ने मियां बीवी को अगवा किया था। मुलजिमान ने पसंद की शादी करने वाले मियां बीवी पर तशद्दुद भी किया। गिरफ्तार इश्तिहारी के खिलाफ मजीद कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। सेंट्रल जेल फैसलाबाद में कैदी ने बिल्डिंग से छलांग लगा दी। वारिस नामी कैदी को मियां वाली जेल से सेंट्रल जेल फैसलाबाद मुंतकिल किया गया। इक़दाम कत्ल का कैदी वारिस जेल में बिल्डिंग से कूद गया। सर और टांगों पर शदीद चोटें आने पर कैदी वारिस को जेल अस्पताल मुंतकिल किया गया। जेल अस्पताल इंतजामिया ने हालत खराब होने पर कैदी को अलाइड अस्पताल 2 मुंतकिल कर दिया। सेंट्रल जेल इंतजामिया ने इक़दाम खुदकुशी पर कैदी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं तैयब मकबूल। डीपीओ कैप्टन रिटायर्ड बिलाल इफ्तिखार कयानी की थाना वरियाम में खुली कचहरी में शहरियों के मसाइल सुने गए, फौरी अहकाम जारी भी किए गए। डीपीओ ने गश्त को मौसर बनाने और तफ्तीशी अमूर तेज करने की हिदायत कर दी। एसएचओ थाना मोशियांवाला और तमाम तफ्तीशी अफसरान खुली कचहरी में मौजूद थे। मुनशियात के हवाले से डीपीओ ने शहरियों से इस्तफसार किया। डीपीओ बिलाल इफ्तिखार का कहना है मुनशियात के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी रखा जाएगा। और नाजरीन, जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर। 14 अगस्त की मुनासबत से सरकारी और निजी इमारतों को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। घंटाघर और जिला कौंसिल की बिल्डिंग को भी बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। सजी हुई इमारतें शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गईं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं तलहा बाजवा से।
جی بالکل 14 اگست کی مناسبت سے شہر بھر کو سجا دیا گیا ہے. شہر فیصل آباد کو کسی دلہن کی طرح سجایا گیا. اگر بات کریں شہر بھر کی جتنی بھی سرکاری اور نجی عمارتیں ہیں اس وقت جو ہے وہ برقی کمکموں سے جو ہے وہ جگمگا اٹھی ہیں. رات کے وقت جو ہے وہ کوئی دلفریب جو ہے وہ منظر پیش کر رہی ہیں. اسی حوالے سے اس وقت میں موجود ہوں ضلع کونسل چوک میں. اگر بات کریں اس وقت کیمرہ مین رحمان آپ کو اگر دکھا سکے تو کس قدر جو ہے وہ خوبصورت یہاں پہ جو ہے وہ لائٹس لگا دی گئی ہیں. شہریوں کی توجہ کا جو ہے یہ مرکز بن چکا ہے. شہری جو ہیں وہ روڈ پر سفر کرنے والے ایک بار تو ضرور یہاں پہ جو ہے وہ رک کے تصویر کھینچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کیونکہ رات کے وقت جو ہے یہ برقی کمکمیں جو ہیں وہ شہریوں کی جو ہے وہ توجہ کا مرکز بن چکی ہیں. نہ صرف جو ہے وہ ضلع کونسل چوک بلکہ اگر بات کریں تو FWMC کی بلڈنگ، چناب کلب اور بھی جتنی بھی جو ہیں وہ فیصل آباد کی بلڈنگ، جس میں خاص طور پہ اگر بات کریں فیصل آباد کی جو پہچان ہے گھنٹہ گھر، اس کو بھی جو ہے وہ خوب جو ہے وہ کلرفل لائٹ سے یہاں پہ سجا دیا گیا ہے. 14 اگست کی تیاریاں جو ہیں اس وقت فیصل آباد پہ جو ہے وہ عروج پہ ہیں. اگر بات کریں ضلع انتظامیہ کی جانب سے جو ہے وہ خوبصورت طریقے سے شہر فیصل آباد کو جو ہے وہ سجایا گیا ہے. شہریوں کو جو ہے وہ توجہ کا مرکز جو ہے وہ شہر فیصل آباد کے جتنے بھی جو ہے وہ مین شرائیں وہ ہے توجہ کا جو ہے وہ مرکز بن چکا ہے. اگر بات کریں تو چھوٹا ہو یا جو بزرگ شہری ان کے ہاتھ میں جو ہے وہ سبز ہلالی پرچم جو ہے وہ موجود ہیں. شہریوں کا بھی یہی کہنا ہے باسی فیصل آبادیوں کا کہ 14 اگست جو ہے وہ محض ایک تاریخ نہیں بلکہ جو ہے وہ قربانی کا دن ہے. اسی حوالے سے شہری جو ہیں وہ خاصے جو ہیں وہ پرجوش دکھائی دیتے ہیں. جی طلحہ بادو اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا. عزم و استقلال کے 78 سال مکمل. ضلع انتظامیہ چنیوٹ نے جشن آزادی شایان شان طریقے سے منانے کے لیے مشاہیر پاکستان کی تشہیر شروع کر دی. اسلامی جمہوریہ پاکستان کا 78واں یوم آزادی اور مارکہ حق میں کامیابی کی خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے شہر بھر میں تشہیر کی جانے لگی، جس میں آزادی کے ہیروز مشاہیر پاکستان کی تصویریں نمایاں ہیں. ڈپٹی کمشنر صفی اللہ گوندل کا کہنا تھا کہ رواں سال جشن آزادی شایان طریقے سے منایا جائے گا. مارکہ حق کی کامیابی اور آزادی کا جشن عوام میں نئی تحریک کا جذبہ پیدا کرے گا. 14 اگست کو شایان شان طریقے سے منانے کے لیے تیاریاں جو ہیں زور و شور سے جاری ہیں. اس میں جو پورے شہر میں جو ہے وہ لائٹنگ کی جا رہی ہے مختلف سرکاری اور غیر سرکاری بلڈنگز کی. اس کے علاوہ تاجر تنظیموں کے تعاون سے مختلف بازاروں کو سجایا جا رہا ہے. مزید برآں یہ ہے کہ جو جتنے مشاہیر ہیں ہمارے ان کے پورٹریٹس جو ہیں وہ مختلف شہر کے حصوں میں لگائے جا رہے ہیں. بہت سی ایونٹس جو ہم نے پلان کیے ہوئے ہیں. انشاءاللہ 13 اگست کو بھی جو ہے وہ بھرپور طریقے سے جو 13 اگست کی رات ہے اس میں بھی جو اس کو اہتمام سے منایا جائے گا. اور 14 اگست کو جو ہے جو روایتی طریقے سے یہاں پر جھنڈا لہرانے کی تقریب ہے، اس کے بعد ملی نغموں کا مقابلہ ہے تاکہ پوری قوم مل کو اس کو منائے. سرکاری عمارتوں پر پرچم لہرائے اور چراغاں کیا گیا. یوم آزادی پر تاجروں کی جانب سے سب ہلالی پرچموں، رنگ برنگی جھنڈیوں اور برقی کمکموں سے بازاروں میں آرائش بھی کی جائے گی. کیمرہ مین علی زیب کے ساتھ وقار گمن 41 چنیور. چنیوٹ پہاڑوں کے دامن میں واقع دلکش شیش محل شہریوں کے دل میں گھر کر گیا. شیش محل حضرت احمد ماہی نے تعمیر کروایا جو اپنی ایک الگ منفرد پہچان کا حامل ہے. چنیوٹ کو اولیاء اللہ کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے. احمد ماہی المعروف سائنس بک کے مزار کی شان و شوکت سب سے منفرد ہے جسے عرف عام میں شیش محل کے نام سے پکارا جاتا ہے. 10 کنال سے زائد رقبہ پر محیط شیش محل میں شیشے کا بہت زیادہ استعمال کیا گیا. ہر شخص اس کی خوبصورتی میں گم ہو جاتا ہے. 1950 میں سائنس بک نے اپنی زندگی میں ہی شیش محل کی تعمیر شروع کروائی. 75 سال بعد آج بھی تیسی کانڈی اور نقش و نگار کا کام جاری ہے. گدی نشین دربار کا کہنا ہے کہ بابا جی سائنس بک کی بہت سی کرامات ہیں. بابا جی فرماتے تھے کہ رہتی دنیا تک تیسی کانڈی کا کام چلتا رہے گا. بابا جی دا اصل نام احمد مائی المعروف سائنس بک. یہ سائنس بک ملے دلخانہ دے ملے والے رکھا ہے جنہوں کا نام جی. یہ 13 جب 1914 مڈ رانجے پیدا ہوئے نے 5 سال کی عمر آئی تو بابا جی کے ماں باپ چنیوٹ ملا کمنگنا گلی مڈا والی شفٹ ہو گیا جی. 14 سالوں کی عمر کے قرآن پاک حفظ کر لیا. 1972 شیشہ دربار تے لگا ہے انہوں کی زندگی تے اس تو پھر لوگ کی کہتے ہیں کہ اس شیش مال کے نام سے مشہور کیتا جی. احمد ماہی المعروف سائنس بک 1914 میں مڈ رانجھا میں پیدا ہوئے اور چھوٹی عمر میں ہی قرآن پاک حفظ کر لیا. دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد چنیوٹ کے محلہ راجے والی آئے اور یہیں کے ہو کر رہ گئے. عقیدت مندوں کا کہنا ہے کہ جب تھک جائیں تو شیش محل آ جاتے ہیں، یہاں آ کر سکون ملتا ہے. سائنس بک سرکار کا ہر سال 2 دسمبر کو عرس مبارک منایا جاتا ہے جس میں ملک بھر سے عقیدت مند شرکت کرتے ہیں.
चिन्योट में पहाड़ों के साथ एक दरबार का सुना था हजरत अहमद माही अलमारूफ साईं सुख का कि ये एक बड़ा बेहतरीन किस्म का जो शाकार है वो बना गया है, लेकिन आज यहाँ कर देखा है यहाँ इंतहाई ज़हनी सुकून मिला है। यहाँ पर इंतहाई खामोशी और बड़ा खूबसूरत दरबार बनाया गया है। मैं काफ़ी दूर से आया हूँ, लेकिन यहाँ पर आगे जब देखा है तो जैसे इसके बारे में सुना था वैसे ही पाया। शहर के वस्त और पहाड़ों की ओट में वाक़ शीश महल को देखने के लिए दुनिया भर से आने वाले ज़ायरीन दरबार की खूबसूरती में खोकर रह जाते हैं। कैमरामैन मोहम्मद रुंदेव के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट।